With us is Mr. Weber Varun, founder Aviacool. So firstly, many congratulations for such a grand event. Thank you. So what was the thought about having this event? What is the main thread behind it? So basically, we have a section in Avia called Outreach, right? And we do basically a whole spectrum. तो ये तो जैसे एक बड़ा इवेंट आपने देखा, एक साल पहले हम कानपुर के छोटे से गांव में जहाँ पे बच्चों ने कभी ड्रोन देखा नहीं था, हमने एक वर्कशॉप की थी 4 दिन की कि स्क्रैच से ड्रोन और आरसी एयरक्राफ्ट कैसे बनाया जाए. सो वी आर इंटरेस्टेड इन आउटरीच. उसका लेवल कोई भी हो सकता है. तो व्हाट वी डू एज ए टीम इज वी वांट टू स्टार्ट विद आउटरीच अक्रॉस अ स्पेक्ट्रम, एंड दिस इज द अदर एंड ऑफ स्पेक्ट्रम. जहाँ पे आप ग्रास रूट लेवल की बात करते हैं वो भी है. सेकेंड, ब्रिंगिंग इंडस्ट्री, ब्यूरोक्रेसी एंड स्टूडेंट फोर्स टुगेदर, वो एक बहुत बड़ा एजेंडा था. इसके तहत ऑलरेडी हमने एक टॉपिक पे इसका था EMRO 2022 NIT दिल्ली में हमने किया था, जिसका चैप्टर 2 हम नेक्स्ट ईयर करेंगे. एंड विथ अनदर थीम दैट इज ग्लोबल सस्टेनेबल एविएशन कॉन्क्लेव, वी हैव डन चैप्टर 1 टुडे इन इंडियन एविएशन अकेडमी. इस पर्टिकुलर कॉन्क्लेव का थीम ये था, 2 दिन का थीम था. पहले दिन हमने मेटाफॉर्म्स फाउंडेशन के साथ किया था, जो कि एक अनोखा ग्रुप है. डिफेंस के जितने भी एक्स आर्मी के लोग हैं, एक्स एयरफोर्स वाले हैं, एक्स नेवी वाले हैं, दे हैव कम टुगेदर एंड दे वांटेड अस टू डू एन इवेंट विद देम ऑन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मिलिट्री एजुकेशन. कि बच्चे को कर्नल और मेजर जनरल में अंतर नहीं पता होता. राइट. इट्स समथिंग वेरी बेसिक, यू नो, फोर्सेज हु आर डूइंग सो मच ऑफ आवर कंट्री, और हम कौन जाते हैं टू द टॉपिक वेयर स्टार्टअप्स आर वर्किंग ऑन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज. But what technologies are they relevant to defense? True. Right. That was our first day. Right. Second is, now that we sit here, we have mostly aviation experts from DGCA, Airport Authority, right, and independent aviation consultants who have come together to tell us how air travel or basically airport infrastructure has become greener from previous times and how it will become more greener. So that is our basic thought process with this event today. Okay. Yeah. So tell us something about Aviacool. What is the all-over vision of Aviacool? What it stands for? So it's a mixture of 2 words, aviation and Gurukul, okay. Right? And we make it Aviacool, yeah. And idea is again lies in the word itself. Okay, we have 3 verticals majorly. First is our academia. We go for commercial pilot training, private pilot training, drone training, drone manufacturing, and everything related to academia. This also includes our collaborations with universities and colleges, so that kids right from a very young age they know what it takes to fly. वो एक बहुत बड़ा विजन, right? Second, we are into events like this, right? Aviation में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास एविएशन पहुँचे, एरोस्पेस पहुँचे, ये एक हमारा बड़ा मोटिव है. Third, where we are little bit more serious is the tech transfer, right? तो हम रशिया के साथ काम करते हैं, रशिया के नेबरिंग कंट्रीज के साथ काम करते हैं, इनटू एनालाइजिंग कौन सी टेक्नोलॉजीज इंडिया के लिए नेसेसरी है, उसको यहाँ तक कैसे लाया जाए, इंडिया से बाहर क्या दिया जा सकता है, डिफेंस में, एरोस्पेस में, एविएशन में. तो ये एक हमारा 3 part विजन है बेसिकली. यस. Also, sir, we heard a lot of speakers talking about sustainability. And one more thing, that at times these conferences happen in somewhere in isolation, away from the academia. And it's a very nice gesture that you have organized it here in the hub itself. Yeah. So all of that communication and that sustainability, how does that fit in? How important it is for the India as a country to grow in this field? So I think there are 2 points to it, yeah, and both the points are contradictory. First point is कि Indians by nature are sustainable. जैसे आपके घर में, मेरे घर में पुरानी पन्नी कोई नहीं फेंकता. True. एक बड़ी पन्नी है जिसमें बाकी पन्नियाँ रखी जाती हैं, राइट? सो वी बाय नेचर आर सस्टेनेबल. बड़े भाई के कपड़े छोटे भाई को मिल जाते हैं, उसकी किताबें, तो इन अ वे वी आर कंजर्विंग रिसोर्स, राइट? हमारे यहाँ पानी वेस्ट नहीं करने की एक आदत है. एट द सेम टाइम, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ पॉपुलेशन वी हैव, राइट, थोड़ी गंदगी भी जो है एक बड़े मास स्केल में रिजल्ट करती है. तो जब आप एयर ट्रैवल की बात करें, तो एयर ट्रैवल इन सिंगापुर कैन बी ग्रीन, बट एयर ट्रैवल इन इंडिया, सर इतने लोग, करोड़ों लोग है ना. दैट इज वाई अगर हम वर्ल्ड का एक बिगर शेयर ऑफ पॉपुलेशन है, हमारी जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी है
बिकॉज उतने लोग हैं हमारे पास, उतना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उतने एयरक्राफ्ट चलते हैं, उतने ही एयरपोर्ट्स बनते हैं, उतना ही पोल्यूशन बनता है, राइट? सो दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द सेंट्रल थीम्स फॉर इंडिया कि अगर हम अब नहीं करेंगे तो एक ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है, जैसा कि आपने रेलवेज के साथ देखा होगा या आपने इवन रोड ट्रांसपोर्ट के साथ देखा होगा, राइट? तो दैट इज व्हाट इट इज. So, what about the government? How is the government so much acceptable? Are they accepting your thoughts? Are they, helping you? Are they holding your hand? एक्चुअली सच पूछे तो ये इवेंट का आइडिया ही हमें गवर्नमेंट सर्कुलर्स के थ्रू आया. ये कोई हमारा आइडिया था ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट. सिंधिया जी ने मल्टीपल इंटरव्यूज में ग्रीनर एयरपोर्ट्स एंड कार्बन नेगेटिव एमिशन की बात की है कि बाय 2030 टू 2050 हम चाहते हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा एयरपोर्ट्स लेसर एंड लेसर कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करें और लेसर पोल्यूशन करें इन जनरल. तो ये ड्राइव ही जो है गवर्नमेंट का स्टार्ट किया हुआ है. तो एक्चुअली वी वर इंस्पायर्ड फ्रॉम देम टू टेक दिस मिशन फॉरवर्ड. तो ऑब्वियसली सपोर्ट तो है ही है, आइडिया ही उनका दिया हुआ है. और आज हमारे साथ है अतुल सिंह जो बात करेंगे ग्लोबल सस्टेनेबल एविएशन के बारे में. सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है. एंड व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द इवेंट? आप क्या एक सराहनीय कदम है जो संस्था है एविया कूल, इनके द्वारा ये जो आयोजित कार्यक्रम है कि हमारे पास क्या वैकल्पिक समाधान क्या है वैमानिकी के प्रचार और प्रसार के लिए, और जो अभी का जो दायरा है इसमें एक कम खर्चे में, कम लागत में, एक लंबे समय के लिए योजनाबद्ध ढंग से वैमानिकी का प्रचार और प्रसार कैसे हो सकता है, तकनीकी समाधान क्या हो सकता है, वैकल्पिक हमारे पास तकनीकी क्या है, वैकल्पिक हमारे पास ऊर्जा स्रोत क्या है. तो इनसे संबंधित जो भी चर्चा परिचर्चा जो हुई है या हो रही है, यह एक सराहनीय कदम है. और अभी हिंदुस्तान में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में